day of the month is 365. I should be accountable, not a single day to be wasted. What was the idea behind that? You got 366 days. You got 1 day more. 1 day more. Yeah. See, when before taking over as a president, my thoughts were very clear. There are two things I kept in my mind. How do I make this organization more visible in the local level, at the national level, and also at the international level? That's one. Second thing, it is not making the organization visible. We have to make it more credible through our work, not by speech or anything. That was the second thing. The words and the work should match each other. Then only the visibility and the credibility of an organization will come into the thing. Just if we keep on talking, the people will not know, because our 48,000 members who has been participated, they are looking for the work what the organization which is doing. Can we proudly say we are the member of organization? That's what we are looking. That was the reason why every day I counted it. As long as I am a president, I need to deliver it to our members. That was the reason for that. When we talk about the delivery things, I was very clear. As Rohit sir was talking, we were more focusing on to the academics was the thing. My thinking was, I was there in the government sector. I knew that it is just academics. If you focus, nothing will work out. With the academics, we need to have an administration. We need to have a social commitment. We need to have an advocacy at the government level. Unless we have all these things in the thing, organization cannot make it visible or credible, even if you work 24/7 into 366 days. That was the reason we combined all the four things into together. That's why we started working with that. In that regard, I think you are also part of it, Vasanti, and almost everybody is here is a part of it. Everybody is working. I am not the one. I believed in a team. That's what we are working with. It is not me or I. It is the Indian Academy of Pediatrics is delivering to their member. Just Basuraj is sitting as a president. That's it. And it is me, I removed from the system. That's the more important thing. So we started working every day. First day itself we rolled out, and most of the time we used to talk about the module. My first thing is I wanted to kill the module concept into the automobile things that I have never intervened. On the only 1st of January I intervened. After that I have never looked into the 20 modules which has been rolled out. All team members is rolling it out, all the members. Because I have decentralized everything. That's the one thing for an administration, what administration can be. Second thing, we wanted to have a collaboration with the international society. That I told it in the Kochi Pedical. We are going to have an international collaboration. That we have already international collaboration, and the fellowship recruitment has been taken place. That's also the work which is happening. That's the second thing. Third thing, parent guidelines. Our Piyush Gupta ji was a president during that time where the community things was the thing. On that basis only I was inspired by sir. So I should do something. Not that everybody was not doing the community work. Everybody was doing the community work. Triple S program is one of the fantastic program. This IIP was just extension of it, nothing behind that. Just we have kind of good terminology so that old wine in a new bottle, so that the people will be more involved in the work. That's the thing. That's how the IIP community case we have been rolled out to 15 program with the great support from our president. And another thing you must be seeing. I am not the president. President is 3 presidents. You are also president. Dr. Vasanji is also president. Decision is not by me. Decision by the team. That's the other thing. We have seen the water turmoils because I entered the IIP, Central IIP, when the turmoil was occurring in 2013, 2014. Piyush sir was there. CP sir was there. That was the thing. During that time, I entered into that. I witnessed all those things. I was aware, but I was not talking. But only thing how to correct. Only thing corrective measures is the thing. ICT is another thing. Where Indian College of Pediatrics, which has been lot of work has been done from 2018, 2019. When you are a president, you gave me a total freedom to me to work. That was the reason why ICT is functioning, not because of Dr. Basuraj, because Upendraji was given a full freedom to Dr. Basuraj to work on that so that next year it can be executed. That's why now the ICT is functioning almost. Still there is a lot of things is there. I know mushrooming is taking place in ICT. That's the part and parcel of anything which needs to be streamlined over a period, it is going to be streamlined. Somebody will come and streamline the things.
That's how the whole things is be started. हमारे साथ बात करने के लिए आईएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बसव राजा हैं, जो कि यूपी पैडिकॉन 2024 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से तमाम पीडियाट्रिक विभाग के डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारा स्वागत है एमएस टुडे पे पहले तो आपका। और दूसरा सवाल सर मेरा ये रहेगा आपसे कि जिस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे और तमाम इस विभाग के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आपकी चर्चा हुई और कौन कौन सी वो चुनौतियाँ हैं जो अभी पीडियाट्रिक विभाग के डॉक्टर इतना समय फेस कर रहे हैं? देखो, बच्चों के मामले में हम बात किए तो चीज़ अभी ऑलरेडी है। ऑलरेडी क्या क्या चीज़ है? अभी न्यूमोनिया है, मेजर प्रॉब्लम है। डेंगू का फीवर है, वही भी मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा हमको डायरिया है, डायरिया भी मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा अभी कोविड होने के बाद में कुछ चीज़ नया चीज़ आ गया। क्या नया चीज़ आ गया? ऑटिज़म है, बिहेवियरल डिजायर है। बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण के लिए बच्चों का बिहेवियर वगैरह में कुछ गड़बड़ हो रही। ऐसा अलावा एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ हो रही, अब्यूज़ हो रही। ज़्यादा जब कहाँ ज़रूरत नहीं है उधर यूज़ हो रही, कहाँ यूज़ हो रही उधर कम यूज़ हो रही। इसी तरह का चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक डिज़ार्डर। जेनेटिक डिज़ार्डर तो अभी इंडिया का उतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हम डेवलप्ड कंट्री के बाद में देख ले तो जेनेटिक डिज़ार्डर का अभी हम सोचना शुरू करना पड़ेगा। उसी के लिए जेनेटिक का डिज़ार्डर के बारे में भी हम इधर डिस्कशन चल रही है। उसके अलावा अभी क्या क्या हमारा इनोवेशन है, क्या उसका कैसा हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम सोच के इधर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से जो स्वास्थ्य विभाग है उसने बहुत सारे स्टेप करो, चाहे नई एम्बुलेंसेस को लॉन्च करना हो या तो फिर जागरूकता के कार्यक्रम करना हो। आप अपने लिहाजन क्या उनको सबसे बेहतर सलाह खास तौर से पीडियाट्रिक विभाग के तौर पे देख सकते हैं? देखो, सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। हमारा गरीब लोग जब गांव में होता है या कुछ इंटीरियर में होता है, उधर से लेकर बड़ा हॉस्पिटल में लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत हमें जानकारी, आपका जानकारी से बहुत खुश हो गया। एटलीस्ट एम्बुलेंस वगैरह अभी मिलना शुरू हो गया। सर देखो, एक तो एम्बुलेंस मिलना अच्छी बात है। एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए? उधर का हेल्थ वर्कर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, भाई उधर का ड्रग होना चाहिए। इसी के लिए हमारा इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का सलाह ले तो हम गवर्नमेंट के साथ में काम करने के लिए बहुत तैयार हैं। एंड उसके अलावा अभी आयुष्मान भारत वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया हुआ, वही आयुष्मान भारत वगैरह में भी प्राइवेट में भी हो रही, गवर्नमेंट में भी हो रही। हमारा इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का इसका मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर भी है, प्राइवेट डॉक्टर भी है, सबको मिलकर ही काम कर ले तो बहुत अच्छी बात होता है। उसी के लिए हम गवर्नमेंट से साथ में मिलकर काम करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जब बच्चा बीमार होता है तो उसको माँ अस्पताल ले जाने के बजाय किसी बाबा के पास ले जाना ज़्यादा उचित समझते हैं। झाड़ फूक, तमाम ऐसे ब्लैक मैजिक और तमाम ऐसी संज्ञाएं मिलती रहती हैं। ये कितने बड़ी बड़ी चुनौती है खास तौर से जो डॉक्टर्स हैं हमारे उनके लिए। और दूसरी चीज़, हमारे डॉक्टर्स किस तरह से जो आम जनता है भोली भाली हमारे देश की, वो कैसे समझाने वाले हैं? ये तो आपने बहुत बेसिक सवाल उठाया आपने, भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्या होता है एजुकेशन सिस्टम, हमारा गरीब लोग गाँव में वगैरह में है, उसका एजुकेशन नहीं होता है, डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होता है, उनके पास में पैसा नहीं होता है। इसी कारण के लिए वो क्या करता है, उधर ही कुछ जाट गीड वगैरह लगा के ये करता है। ये तो सबसे, उसी के लिए हम इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या किया हुआ इस बार तो आईएपी के बाद कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ। उसका मतलब क्या है, हमारा ब्रांचेस 374 ब्रांचेस से 374 ब्रांचेस स्पेशली हमारा उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, सब डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में हमारा लोगों के लिए हम इसका बारे में पूरा जानकारी दे रही। एंड डॉक्टर के पास में आना है, ज़रूरत है, टीका लगवाना है, कोई भी बीमारी हो जाए तो सब बीमारी के लिए हमारा ट्रीटमेंट मिल रही, गवर्नमेंट में भी मिल रही, प्राइवेट में भी मिल रही। आयुष्मान के कारण के लिए पैसा का ज़्यादा ज़रूरत, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, बट ट्रीटमेंट ले लीजिए। ट्रीटमेंट ले ले तो बहुत बच्चा अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे साथ। भारतीय बाल अकादमी की उत्तर प्रदेश की जो कार्यशाला या जो कॉन्फ्रेंस है वार्षिक होती है, तो हमारे देश में जो बच्चों की मृत्यु दर है, छोटे बच्चों की, नवजात शिशु की जो स्वास्थ्य है,
हर प्रदेश में अलग अलग है, देश का एवरेज अलग है, और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सबसे नीचे आते हैं इसमें। तो जो देश भर के यहाँ डॉक्टर आए हैं, तो पुराने समझ लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय बाल अकादमी के, पिछले 12 साल के 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, दिल्ली में मृत्यु दर को काफ़ी कम कर लिया गया है, जो कि उसका जो लक्ष्य था कि नवजात शिशु की मृत्यु दर हो कम से ज़्यादा कि 1000 बच्चे अगर पैदा हों तो उसमें से 988 को हम जीवित रख लें, 12 से ज़्यादा डेथ न हो। हमारे उत्तर प्रदेश में है डेथ रेट 30, हम इसको 988 या करना चाहते हैं। 970 बच्चे हम अभी भी न्यूबॉर्न बच्चे बचा लेते हैं। 5 साल के बच्चों में हमारे यहाँ समझ लीजिए 940 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन देख पाते हैं, 60 बच्चे नहीं देख पाते, उनको बीमारियों से डेथ हो जाती है। नेशनल एवरेज है 40 और लक्ष्य है 25, जो हमारे देश का और प्रदेश का और विश्व का लक्ष्य है 25, हमें 2025 तक 2030 तक करना है। तो उन्होंने अपने राज्य में कैसे किया, इसमें आपने पूछा पहलू, तमाम पहलू हैं। जैसे वहाँ पे जो नॉन मेडिकल पहलू ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे स्त्रियों की शिक्षा, सुरक्षा, जहाँ पे नारी सशक्तिकरण है वहाँ पे वो अपने बच्चों के इलाज करा लेते हैं जाके, क्योंकि उनके वोट से सरकार बनती है, उनका काम होता है। हमारे प्रदेश में नारी सशक्तिकरण पीछे है। कोई भी व्यक्ति होता है, गांव का हो, शहर का हो, वो कहता है कि बच्चे के इलाज में देरी इसलिए हो गई क्योंकि ये नहीं थे, घर में पुरुष बाहर थे, तो महिला के लिए जला के इलाज नहीं कराने की पहल करती है। तो जैसे ये नॉन मेडिकल टॉपिक हमने एक जिक्र किया, जैसे वातावरण है, केरल का वातावरण सबसे अच्छा, वहाँ का मृत्यु दर वगैरह सबसे कम है, विदेशों के बराबर है। तो वहाँ पर शिक्षा भी अच्छी, बालों के शिक्षक वहाँ से 10 गुना ज़्यादा हैं। एक फैक्टर ये भी है कि अपने प्रदेश में 10 करोड़ बच्चे हैं, 25 करोड़ की आबादी में 40%, 10 करोड़ बच्चे, उसमें से 5-6 करोड़ छोटे बच्चे हैं जो 5-6 साल से नीचे हैं। तो उनके लिए सिर्फ 2000 डॉक्टर हैं, जो केरल से 10 गुना कम है, महाराष्ट्र से 5 गुना कम है। तो जितना कर सके हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए समन्वित प्रयास जो सरकार के हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वो कम नहीं आंकना है। सरकार के प्रयासों से पोलियो ख़त्म हुआ, सरकार के प्रयासों से हम कोरोना से लड़ पाए, सरकार के प्रयासों से अब अगले साल तक टीबी मुक्त भारत बनाना है, इसके अलावा मीजल्स से मुक्त करना है, टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। तो इन सब चीज़ों से सरकार के प्रयासों के साथ में भारतीय बाल अकादमी, जो कि हमारी संस्था भारतीय बाल अकादमी बाल स्वास्थ्य के लिए पिछले 60 साल से काम कर रही है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। तो तब हमारी देश की आज़ादी और समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान की भी थी, लेकिन अब सेहत पर ज़्यादा ध्यान है कि काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं। तो सारे विश्व का ध्यान है कि अब सेहत पर ध्यान दिया जाए। तो इसके जो लक्ष्य रखे गए हैं, इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। कि पहला गोल है कि पूरी धरती की भूखा कोई न रहे, दूसरा गरीबी ना रहे, तीसरे पे आता है स्वास्थ्य वगैरह सबका अच्छा रहे। इस तरह से 17 गोल बनाए गए हैं, 2023 तक पूरे करने हैं। तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, इसमें भारतीय बाल अकादमी के 8 प्रेसिडेंट आए विभिन्न राज्यों से। उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, जहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य और अच्छा हो। सर एक बात बताएं, जिस तरह से हम गाँवों में देखते हैं, कई बार जो महिलाएं हैं खास तौर से, वो बीमार जब बच्चा उनका होता है तो वो डॉक्टर के पास अस्पताल जाने के पहले किसी बाबा के पास जाना या फिर इस तरह के ब्लैक मैजिक की तमाम चीज़ों में उलझ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, और इस क्योंकि ये खुद अपने आप में बीमारी है, तो इसको कैसे कोप अप करें? जी हाँ, इसके लिए देखिए सरकार के प्रयासों की सराहना करनी होगी। सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि पहले 50% बच्चे जो है घर में पैदा होते हैं, लेकिन सरकार की जननी सुरक्षा योजना, उसके तहत अब 85% बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं। उनको बर्थ पे अटेंडेंट एक देने के लिए कि जो बच्चों में 10 में से 1 बच्चे को सांस में दिक्कत आ जाती है, तो उसके सांस में सहायता करने के लिए हर बच्चे के लिए एक व्यक्ति हो ट्रेंड,
ये इसकी ट्रेनिंग हमारी एकेडमी ने कराई है प्रदेश और देश की सरकार के साथ मिलकर। और हर बच्चे का 1 महीने पे सुनने का चेकअप होगा निःशुल्क, और 1 महीने पे आई का चेकअप होगा, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं पाता पैदाइशी वो लिख भी नहीं, वो बोल भी नहीं पाएगा। जो बच्चा देख नहीं पाता है वो आगे लिख भी नहीं पाएगा। तो उनको जल्दी अगर समझ में आ जाए तो हम उसको सुनने और देखने का इलाज कर सकते हैं। आँख को तो हम 100% ठीक कर सकते हैं, उस सुनने को भी जल्दी पहचान लें तो उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे उसके ब्रेन का विकास हो। तो अब बच्चों का जो सर्वाइवल है वो तो हमने जीत लिया, काफ़ी मृत्यु दर कम कर ली। नवजात शिशु मृत्यु दर चैलेंज इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रीमेच्योर बच्चे, कम दिन के बच्चे होते हैं, उनके ऑर्गन कमज़ोर होते हैं, ब्रेन भी कमज़ोर होता है, तो बड़े होकर वो करेंगे क्या? तो उनका ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो तरकीबें हैं, जो योजनाएं हैं, जो तरकीबें तकनीकें हैं, वो सब डिस्कस हुई हैं कि जो कम दिन के प्रीमेच्योर बच्चे जीवित रह जाते हैं वो अच्छा विकास हो के बड़े हो के अच्छे नागरिक बने, अच्छे कमाऊ नागरिक बने। तो इस सब के चीज़ों पे अगले 2 दिन की कार्यशाला कल और परसों, जिसके जो व्याख्यान होंगे उसके लिए विदेश से देश के तमाम जो एक्सपर्ट आए हैं उनको जो है जो निष्कर्ष निकलेगा, हम उत्तर प्रदेश सरकार को एक उत्तर प्रदेश मॉडल बनाने में सहयोग करेंगे। जिस तरह से हर चीज़ के लिए एक उत्तर प्रदेश मॉडल बन के उभर रहा है इस प्रेजेंट सरकार में, इसी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक उत्तर प्रदेश मॉडल बन के कार्यशाला उभरे, ये हमारी पूरी संभावना है, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अपने दोनों कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह और अजय शर्मा के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।